Hello बच्चों, welcome to शताब्दी दीदी's classes. So today what we are going to do, हमने last session में metal and non-metal के बारे में पढ़ा था grade 8 का, right? So metal and non-metal के physical properties के बारे में हमने पढ़ा. Physical properties मतलब looking at their attributes, बाहर से देख के आपको पता चलेगा if it is metal or non-metal. जैसे कि metals are sonorous. metal को अगर आप hit करो तो एक ringing sound होता है. metals are normally in room temperature, they are hard, they are, for example, gold. Okay, metals are good conductor of heat and electricity. जैसे कि आपके किचन के यूटेंसिल्स, these are made up of metals, है ना. जैसे metals are lustrous and shiny, isn't it? तो ये सारे बाहर से देख के पता चलने वाले प्रॉपर्टीज जो है, these are called physical properties. So जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बोला था, today we are going to discuss about the chemical properties of metals and non-metals. So chemically, how do they react with different substances like water, with oxygen, with acids, with bases? Metals and non-metals will react differently, and जिससे हमें एकदम evidently पता चलेगा कि ये metal है या non-metal है, right? So I told you all to share certain substances around you. जिसमें से कौन सा metal है, non-metal है. I have got personally a lots of messages from students, and I'm glad all of you have shared that. If you have still not done, there are some people who have not done. Feel free to do that. आसपास के सारे चीजें देखो and उसको categorize करो based on their properties, metal and non-metal. All right. So let's start with today's session. We're going to discuss about the chemical properties of metal and non-metal. Okay. So what are the lesson objectives today? At the end of the session, you should be able to describe the chemical properties of metals and the chemical properties of non-metal. Okay. So let's start with the chemical properties of metal. Okay. So सबसे पहले metals except gold and silver react with oxygen to form basic oxides. ओके जैसे कि मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट होगा. इट विल बर्न एंड इट विल क्रिएट मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग हो सकता है. यू कैन बर्न इफ ओनली इफ देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट. सो if you burn the metals, you are able to burn the metals in presence of oxygen, they will give the oxides. For example, magnesium. अगर एक magnesium ribbon को आप जलाओगे, definitely it is reacting with the oxygen and it is creating the magnesium oxide. एक जो धुआं निकलेगा, that is basically the magnesium oxide. Okay. Now let's understand रस्टिंग ऑफ आयरन. सो रस्टिंग ऑफ आयरन हम सबको पता है, राइट. लोहे का कोई भी चीज बहुत दिनों तक ओपन में अगर खुला पड़ा हुआ रहता है तो उसके ऊपर एक रेड कलर का लेयर हो जाता है, एज यू सीइंग इन दिस पिक्चर. इस जो ये जो लेयर अपने आप से क्रिएट होता है, ये होता आता कहाँ से है? हैव यू एवर वंडर्ड? दिस इज नथिंग बट रस्टिंग ऑफ आयरन. सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? इट इज द फिनोमेना of which, of the deposition of reddish brown coating on the surface of iron by action of moist air. So आयरन के ऊपर ही ऐसे लेयर्स आपको दिखेंगे, है ना. जंग पकड़ा हुआ लोहा जिसे हम बोलते हैं, जंग, लोहे में जो जंग लगता है, द रस्ट. ये कैसे होता है? इट इज एक्चुअली अ रिएक्शन दैट इज हैपनिंग. क्या रिएक्ट हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? लोहे के साथ या फेरस के साथ या आयरन के साथ. आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसमें पानी है, पानी के अंदर moisture है available, which is water. So basically this iron is reacting with oxygen in the presence of water and it is giving iron oxide, which is known as the rust. So all right, so this is the reaction that is happening जिसके वजह से ये होता है. So that means metals are reacting with oxygen and giving their oxides. जैसे कि magnesium was giving magnesium oxide, iron is giving iron oxide. Okay, and this phenomenon is known as rusting of iron. अभी सिर्फ आयरन का ही ऐसा रस्टिंग नहीं होता है, कॉपर में भी होता है. कॉपर में आप जनरली कॉपर यूटेंसिल्स हम पूजा करने के लिए यूज करते हैं, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज कॉपर वेसल्स आर एक्सपोज्ड इन द एयर. आपने देखा होगा कि अगर आप कॉपर वेसल्स यूज कर रहे हो घर पे पानी पीने के लिए, बहुत से लोग कॉपर यूज करते हैं, कॉपर वेसल्स यूज करते हैं.
you know for worshipping god you might use copper vessels, या घर में कोई मेहमान आ जाए तो we generally offer food in copper vessels. So these are very prestigious things for us to use copper vessels are exposed. अगर वो बहुत दिनों तक exposed है, बहुत दिनों से आप यूज कर रहे हो कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर के ग्लासेस या यूटेंसिल्स, आप देखोगे उसके ऊपर एक डल ग्रीन सा कोटिंग आ जाता है. तो ये क्या है, अपने आप से ये कोटिंग कहाँ से आ रहा है? So when copper vessels are exposed in air in rainy season for some time, the metal reacts with gases and moisture present in the air to form mixture of copper carbonate and copper hydroxide. Okay, so it gives a green color to the vessel. So copper, in the presence of oxygen and moisture and carbon dioxide, it gives copper carbonate and copper hydroxide. Okay, so this is also a reaction of metal, because copper is a metal, ferrous is a metal, iron, magnesium, these are all metals are actually reacting in presence of oxygen. ये हम देख पा रहे हैं, and they're giving oxides, and अगर पानी water is also present, they might give hydroxides. Okay, तो ये हो गया रिएक्शन. नाउ पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है? सो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, जितना रिएक्टिव वो मेटल है, दे विल रिएक्ट विद द वाटर. मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल विल आल्सो रिएक्ट विद वाटर. तो क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दे रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, एंड आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली. जैसे हमने देखा, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड आयरन रस्ट क्रिएट हो रहा है. ओके, बट वो स्लोली रिएक्ट करता है. लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करने लगता है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज रिएक्शन विद वाटर. तो मेटल प्लस वाटर में क्या मिलेगा हमें? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, सो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, राइट, ये याद रखना. मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल गिव हाइड्रोक्साइड ऑफ दैट मेटल एंड हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल कम आउट इन दिस रिएक्शन. ओके, सो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन ऑक्साइड. पानी के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल. ओके, तो क्या तो पता चला. अभी एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, अगर आप एक मैग्नीशियम स्ट्रिप लोगे, इफ यू गेट अ चांस इन योर स्कूल लाइफ, यू नो, with the assistance of your teacher to do such experiments, you might do that at your schools if you get a chance, because acids are very, you know, risky things, so you need to do it under anybody's assistance definitely. तो reaction with acid के साथ metal react करता है. कैसे करता है? जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक मैग्नीशियम स्ट्रिप है, यहाँ पे एक डाइल्यूट एसिड है. तो यहाँ पे डालने के बाद क्या देखा जा रहा है? सम बबल्स ऑफ गैसेस राइजिंग, ओके, ऑन द सर्फेस. तो ये बबल्स ऑफ गैस क्या है? इट इज नथिंग बट हाइड्रोजन गैस. सो फॉर एग्जांपल, जिंक के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4 का अगर रिएक्शन होगा, तो इट विल गिव ZnSO4 plus H2 हाइड्रोजन गैस. ओके, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. ओके, जिंक के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl, इसका रिएक्शन होगा तो इट विल गिव जिंक क्लोराइड एंड H2. ओके, सो बेसिकली मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट. यहाँ पे एक इक्वल साइन होगा, आई फॉरगॉट टू गिव दैट. Zn plus 2HCl equal to ZnCl2 plus H2. Okay, here there will be an equal sign. Right. So this is what the reaction is. Okay. Now reaction with bases. तो bases के साथ reaction में भी same चीज, it will produce hydrogen gas. इतना याद रखा. Acid and bases के साथ metal react करता है तो it will give hydrogen gas. Okay. Now another important thing is known as displacement reaction. अभी displacement मतलब किसी को replace करना, है ना? तो displacement reaction में क्या हो रहा है? There are some metals, not all metals, they are capable of this particular reaction of displacing other metal from their solution. किसी metal का अगर solution है, okay, इसमें वो metal dissolved, जैसे कि copper sulfate solution में अगर आप जिंक डालोगे, तो जिंक will react with it and it will displace copper from that copper sulfate solution. copper को अलग कर देगा and it will make zinc sulfate. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, Zn plus CuSO4 is giving Cu plus ZnSO4. क्या हो रहा है? ये Cu को रिलीज कर रहा है
एंड ये SO4 को खुद के साथ मिला के ZnSO4 बना रहा है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड displacement reaction. So zinc replaces copper from the copper sulfate solution. कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें से वो डिस्प्लेस कर रहा है. ठीक है, एक और हम एग्जांपल देखते हैं इसका. सो अगर आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक आयरन नेल ले लिया. आयरन नेल मतलब उसमें फेरस है, Fe. ओके, ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर जनरली ब्लू होता है. तो अभी यहाँ पे एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. व्हाट विल बी द रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो आप धीरे धीरे देखोगे ये आयरन नेल के ऊपर रेड कलर का कोटिंग क्रिएट हो रहा है. ये रेड कोटिंग किसका है? कॉपर मेटल का है अबव द आयरन नेल. एंड सोल्यूशन का कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया बिकॉज इट हैज बिकम नाउ आयरन सल्फेट सोल्यूशन. सो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है? आयरन नेल ले लिया मतलब इट इज Fe, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सो इट विल गिव Cu प्लस FeSO4. तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. एंड ये डिस्प्लेस मतलब कॉपर अलग हो गया, कॉपर सल्फेट से अलग होके ये डिपॉजिट हो गया आयरन नेल के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन नेल का कलर चेंज हो गया. एंड सोल्यूशन बन गया. अभी पहले सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, अभी क्योंकि यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फिर इसने SO4 को अपने साथ मिला लिया, बन गया FeSO4. तो FeSO4 सोल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन होता है, जिसकी वजह से सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया एंड इस नेल का कलर भी चेंज हो गया. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, so now we'll learn about chemical properties of non-metal. Okay, chemical properties of non-metal देखो बहुत ही सीधा सा है. सबसे पहले non-metal generally don't react with water. Okay, and reaction with oxygen is same जैसे मेटल में होता था. सो नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट विल गिव द ऑक्साइड्स. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है जनरली. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज इट इज एसिडिक. ओके, रिएक्शन विद वाटर क्या होता है? नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. ओके, तो नॉन मेटल्स विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट विल गिव द ऑक्साइड्स. ना पता रखो, बाकी सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जनरली इट डजंट रिएक्ट दैट मच with other elements. Okay, like metals. ओके, अभी यूजेस. ये मेटल एंड नॉन मेटल यूज कहाँ पे होता है? मेटल्स तो बहुत सारे जगह पे, मशीनरीज बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट्स बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल बनाने में, वाटर बॉयलर बनाने में, वायर्स बनाने में, है ना, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स का वायर बनता है, मेटल का ज्वेलरी बनता है, यू नो, कॉइन्स बनता है, डॉलर्स बनता है, मेटल से मशीन्स बनते हैं, है ना. बहुत सारे यूजेस है मेटल का, है ना. बिकॉज इट इज लस्ट्रस, इट इज शाइनी, तो इसीलिए मेटल का ज्वेलरीज बनता है मेटल को यूज करके. ऑल्दो देयर इज अ नॉन मेटल डायमंड जिसका भी ज्वेलरी बनता है, बट मोस्टली मेटल के ज्वेलरीज बनते हैं, मेटल के गैजेट्स बनते हैं, मेटल्स के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स बनते हैं मेटल को यूज करके. ओके, वाटर बॉटल्स बनते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ मेटल. नॉन मेटल में जैसे कि गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लिविंग. फर्टिलाइजर्स में मेटल यूज होता है, बुक्स बनते हैं मेटल का, वुड नॉन मेटल है तो वुड को यूज करके वुडन रूलर बनता है, फर्नीचर्स बनते हैं. ओके, ब्लीचिंग पाउडर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है. एंटीसेप्टिक आयोडीन सोल्यूशन यूज करके बनता है, एंटीसेप्टिक्स यू मस्ट हैव हर्ड. क्रैकर्स में नॉन मेटल यूज होता है. ओके, रबर बैंड, मैच स्टिक, बुक, स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्पून, वुडन रूलर, बहुत सारे यूजेस ऑफ नॉन मेटल भी है. सो नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी लर्न टुडे. हमने आज सीखा बहुत कुछ, जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के स्पेसिफिकली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो वी लर्नड दैट metals and non-metals both react with oxygen and give the oxides. Metals react with acids and bases and gives hydrogen gas. Metal reacts uh, with water and gives the hydroxides.
Okay, we learned about rusting of iron. We learned about the dull green coating in the copper. Why does it happen? Because of a reaction, right? हमने ये भी जाना कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ आर मोस्टली नॉन रिएक्टिव. वाटर के साथ वो भी बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है. एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ओके, वी लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल्स तो बहुत ही वाइडली यूज होता है हर जगह पे, इंडस्ट्रीज पे, मशीनरीज पे, ट्रांसपोर्ट्स बनाने के लिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए, जैसे कि बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स. रेगुलरली भी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए, बिकॉज इट मेक्स अ साउंड. सो बहुत सारे यूजेस है मेटल का. देन देर आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स भी जैसे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल. वी नो वी ब्रीथ ऑक्सीजन, वी लिव विथ ऑक्सीजन, है ना. नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स वुडन फर्नीचर, वुड इट इज नॉन मेटल, फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है. एंटीसेप्टिक यूज करने के लिए, बनाने के लिए. मैच स्टिक्स में प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक कटलरीज बनाने के लिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो नॉन मेटल. तो ये सारे चीजों में मेटल नॉन मेटल का यूज होता है. सो आज हमने कंप्लीटली सीखा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बाहर से देख के बाहर के प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका कलर, उनका शाइन, उनका साउंड से कैसे पता चलता है इफ इट इज मेटल और नॉन मेटल. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन से कैसे पता चलेगा if it is metal or a non-metal, how reactive it is. Metals are mostly very reactive. It reacts with acids, with bases, with water, with oxygen, everything. But non-metals are non-reactive in nature mostly. Okay, so that's all about today's session. इसको अच्छे से पढ़ो. Notes are there in Shatabdi's classes app. You can download Shatabdi's classes app. All the links are there in the description. Feel free to follow that. And also courses are there. If you want regular classes from me, I'm giving regular classes at very low cost. Feel free to enroll for that. All right then. Bye bye. Have a nice day.